Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मेंथा कल्टीवेशन विथ रेफरेंस टू वैरायटी सॉइल क्लाइमेट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. क्या बोला जा रहा है? मेंथा कल्टीवेशन के बारे में विथ रेफरेंस टू वैरायटी, जिसके वैरायटीज क्या क्या है, इसके सॉइल और क्लाइमेट क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है और इसको प्रोसेस कैसे करेंगे विथ रेफरेंस टू वैरायटीज सॉइल क्लाइमेट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग. तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है. दिस इज सिंपल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन. और इस बार थोड़ा सा यूपीएससी डिफरेंट हुआ था बिकॉज इट आस्क्ड अबाउट मेंथा कल्टीवेशन. मेंथा इज नथिंग दैट इज मिंट. तो समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज कि मेंथा वगैरह के बारे में पूछ देते हैं. तो जनरली थोड़ा सा इस बार यूपीएससी अलग गई थी. पर अगर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है तो जितने भी एमएसपी क्रॉप्स हैं उसको आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है. प्लस द क्रॉप्स विच आर इन न्यूज, जो आपको लग रहा है विच आर इंपॉर्टेंट इन न्यूज. सो एटलीस्ट ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्रॉप्स. जो 25-30 क्रॉप्स इंपॉर्टेंट होंगे लाइक दिस, आप ये प्रिपेयर कर लो, ठीक है. बिकॉज एवरी ईयर दे आस्क 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डायरेक्टली, ठीक है. तो इफ यू विल बी प्रिपेयर्ड सो it will be good for you. And this was asked in 2023 agriculture optional paper of UPSC CSE. So let's see how you approach this answer. So first of all, mentha. Mentha is nothing but mint. Mint का ही अगर scientific name देखा तो it is mentha. Mentha species is mint. And there are different types of mentha. That is why I have written species here. So mentha is nothing but it is mint, okay. And अगर आप इसमें if you want to introduce you can write that it is highly aromatic herb. And it has very wide usage. It is very used in culinary purposes, medicinal purposes, industrial purposes. So it is the wide use of mentha, that is culinary, medicinal, industrial, etc. It is used in various purposes. You have ever seen कि mint का जो use है वो काफी होता है, ठीक है. So this is how you can introduce. Now let's move to the body of the question, that is varieties of mentha, soil and climate, nutrient management and processing. So let's move to the variety. That what is the varieties, common varieties of mentha. So there are different kinds of mentha, okay. When you go to the mentha, when you start researching about mentha, you will find that, or you can say mint, there are different kind of mint such as Japanese mint, we have spearmint, we have bergamot mint, we have peppermint. So these are the common types of mint. And in every types there are several varieties developed. हर एक टाइप में अगर आप देखो जापानीज मिंट के काफी वैरायटीज हैं, स्पीयरमिंट के वैरायटीज है, bergamot mint के काफी वैरायटीज है, पेपरमिंट के काफी वैरायटीज है. फॉर एग्जांपल द कॉमन वैरायटीज ऑफ जापानीज मिंट इज MAS1, MA2, शिवालिक. So these are the common varieties of जापानीज मिंट. फिर अगर स्पेयर मिंट की बात की जाए तो वी हैव MSS1, MSS5, पंजाब स्पीयरमिंट, पंजाब स्पीयरमिंट 1. फिर अगर आप बेरगामोट मिंट की बात की जाए तो वी हैव किरण, वेरी कॉमन वैरायटी. फॉर पेपरमिंट वी हैव कुकरेल. So these are some of the common varieties of mint, okay, that is, or you can say mentha. Now let's move to the soil and climate. तो soil की बात की जाए तो it grows very nicely in well drained loamy soil. Well drained loamy soil, and the soils which are high in organic matter, it grows very nicely in soil. जो भी soils में organic matter की content high होती है, it also grows nicely
there, ठीक है, organic loamy soil with high organic matter content, and the pH of soil should be around 6.5 to 7. This pH is the most suitable pH for mentha cultivation. And when it comes to climate, तो जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, ठीक है, इट grows very nicely in temperate climate, और यू कैन से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में मेंथा उतना सक्सेसफुल नहीं देखना गया. इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इट इज बीन नॉट सीन दैट मेंथा इज सो मच सक्सेसफुल, बट इन टेम्परेट क्लाइमेट इट इज वेरी नाइसली सीन ग्रोइंग. टेम्परेट क्लाइमेट ये काफी सूट करता है, जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट करते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो काफी सूट करता है विथ मॉडरेट रेनफॉल. रेनफॉल मॉडरेट ऑफ अराउंड 100 सेंटीमीटर आप कर सकते हो, रेनफॉल मॉडरेट एंड एबंडेंट सनलाइट. तो टेम्परेट क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल एंड सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ. तो ये बात होगी सॉइल की, दैट इज वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए हाई ऑर्गेनिक मैटर के साथ, और पीएच 6.5 to 7. दिस इज द बेस्ट सूटेड सॉइल और बेस्ट सूटेड क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल एंड एबंडेंट सनलाइट. नाउ लेट्स मूव टू न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए मेंथा को? तो जनरली अगर आप न्यूट्रिएंट की बात करें तो जो एनपीके होता है, दैट इज व्हाट हम सब बात करते हैं. तो एनपीके में अगर बात करें तो इसको अगर बेसल अप्लाइंग की बात करें, बेसल डोज की बात करें, तो बेसल में इसको द यू एनपीए इज अराउंड 50 रेशियो 75 रेशियो 50 kg पर हेक्टेयर. इट इज द बेसल एप्लीकेशन ऑफ एनपीके, ठीक है. अब इसमें देख रहे हो फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो अधिक यूज की जा रही है. व्हाई? बिकॉज फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग, और क्योंकि एरोमेटिक प्लांट है, यहाँ से एरोमेटिक ऑयल भी काफी निकलती है, तो उसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम का भी काफी रोल है, बट फॉस्फोरस इज हैविंग अ वेरी ग्रेट रोल. इसीलिए आप देखोगे फॉस्फोरस यहाँ पे अधिक दिया जा रहा है, और नाइट्रोजन जो है फिर बेसल में ये देते हैं हम लोग. और फिर आफ्टर प्लांटिंग वी आल्सो गिव अप्लाई नाइट्रोजन ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर. प्लांटिंग के बाद ये तो बेसल में दे रहे हैं हम लोग, और प्लांटिंग के बाद भी हम लोग चाहे तो नाइट्रोजन 25 kg के पर हेक्टेयर के रेट से एक बार देते हैं. दिस इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट विथ हाईली स्पेसिफिक. फॉस्फोरस पे यहाँ पे काफी स्पेसिफाई किया जा रहा है, 75 kg अधिक दिया जा रहा है, बिकॉज इट प्रमोट्स फ्लावरिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्रॉप, बिकॉज ये एरोमेटिक ऑयल प्रोड्यूस करता है. और एटेंट मैनेजमेंट में हम चाहे तो ऑर्गेनिक मैन्यूर वगैरह दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आप लिखना जरूरी. कोई भी क्रॉप का है तो आप उसमें ऑर्गेनिक मैन्यूर और फार्म यार्ड मैन्यूर मेंशन कर दो, बिकॉज गवर्नमेंट इज पेइंग हाई थ्रस्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द न्यूट्रिएंट्स. व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग, अगर प्रोसेसिंग की बात की जाए तो मेंथा का जो प्रोसेसिंग में मेंथा को क्या प्रोसेस करके क्या निकाला जाता है, दैट इज डिस्टिलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स. मेंथा इज नोन फॉर इट्स एसेंशियल ऑयल्स. तो प्रोसेसिंग में जनरली हम इसको ऑयल को डिस्टिल करते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका डिस्टिल करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के लिए जो हम लोग सबसे लीव्स ऑफ मेंथा, जो लीव्स होते हैं मेंथा को, उसको हम लोग उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉमनली यूज्ड इज स्टीम डिस्टिलेशन. और स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो कॉमनली यूज होता है. दिस इज अबाउट प्रोसेसिंग. डिस्टिलेशन कराना हमको एसेंशियल ऑयल्स को यहाँ पे, क्योंकि हम एसेंशियल ऑयल्स से एक्सट्रैक्ट करना. किस पोर्शन से एक्सट्रैक्ट करते हैं? फ्रॉम लीव्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट प्रोसेसिंग. होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो मेंथा का जो भी पूछा गया था वैरायटीज के बारे में मैंने अच्छे से एलोबरेटली आपको एक्सप्लेन कर दिया, सॉइल और क्लाइमेट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और प्रोसेसिंग के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया. दैट इज प्रोसेसिंग बिकॉज हमें इसे ऑयल से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. और जितने भी ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है जो मैंने बताया, एमएसपी क्रॉप्स, जितने भी कुछ क्रॉप्स न्यूज में जो इंपॉर्टेंट आपको 25-30 क्रॉप्स जो उनको, तो हमेशा एमएसपी उनके जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस यू शुड बी रिमेम्बरिंग इंपॉर्टेंट 25-30 क्रॉप्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम. हर if you see the question paper of previous year, previous years, in every year you will see that 1-2 questions are coming from this package of practice section, so you should be prepared for it. So that is all for today. I hope you understand everything. So please do like, please do share, and please do subscribe. That is all for today. Have a nice day. Thank you.